Hello student, I Ajay Kumar Patidar, class 7, chapter number 4, heat in your science. We are studying about heat, what is it, how to use of heat in daily life, what is thermometer, about that type of concept in this chapter. Hot and cold, activity 4.1 here, hot and cold. In our day-to-day life, we are across a number of objects, some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. हम डे टू डे लाइफ के अंदर हॉट एंड कोल्ड जो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें उनको महसूस करते हैं फील करते हैं लाइक दैट टी इज़ हॉट ice is cold. List some object UV is commonly used in table 4.1. 4.1 जो टेबल है इसके अंदर हमें फील करना है हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को. आइसक्रीम इज कॉल्ड स्पून ऑफ टी, फ्रूट जूस, द हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. इट इज़ लाइक ये क्या चीज़ें होगी, हॉट होगी कोल्ड होगी, आपको ये फील करना है. डू वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. कुछ चीज़ें ठंडी होती है, कुछ चीज़ें क्या होती है, गर्म होती है. एक्टिविटी 4.1. Take a small tub container, label them A, B and C. Put cold water in a mug A is hotter, but in mug B. Put cold in water mug A, hot water in mug B. Mixture of some cold and hot in C. Fill water in 3 container. 3 container लिए हैं. फर्स्ट के अंदर हमने फिल किया cold, सेकेंड के अंदर फिल किया hot, थर्ड के अंदर some cold and some two types. Now dip your left hand in mug A, right hand in mug B. After keep the hand in 2 mugs for 2-3 minutes. Put the hand simultaneously in mug C. Do both the get the same feel. A के अंदर हमने कोल्ड फील किया था, हमें ठंडा लगेगा. B के अंदर हमने हॉट फील किया तो थोड़ा गर्म लगेगा. C के अंदर हमें कैसा फील होगा. Bujos confused, so we cannot always rely on the our sense to touch decide whether an object or cold. Sometime may device use. हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कैसा वो ऑब्जेक्ट हॉट होगा या कोल्ड होगा. देन वी फील आउट हाउ hot an object really is. A reliable measure is hotness of an object is at temperature. जो टेम्परेचर को मेजर्स करता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं. थर्मोमीटर चेक करता है टेम्परेचर का वो हॉट है या कोल्ड है. मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम अलग अलग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. फर्स्टली यूज़ करेंगे हम क्लिनिकल टेम्परेचर का यूज़ करेंगे. हाउ यू सी अ टेम्परेचर, रिकॉल दैट व्हेन यू समवन एल्स इन यूर फैमिली हैड फीवर. यदि आपकी फैमिली में यदि किसी को फीवर हुआ था, हम टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं उस थर्मोमीटर को क्या कहते हैं, क्लिनिकल टेम्परेचर. द टेम्परेचर दैट मेजर ओवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर्स. क्लिनिकल टेम्परेचर होल्ड द टेम्परेचर इन एक क्लिनिकल टेम्परेचर इस तरीके का एक क्लिनिकल टेम्परेचर होता है, उस पर स्केल होती है. यू हैंड द एग्जामिन इन केयरफुली. वी डू नॉट हैव द थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर विथ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक ए वन शोन फिगर 4.2. दैट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल thermometer and this like structure. A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. It a bulb at one end. This bulb contain mercury. इसके अंदर क्या फील होता है, इसके अंदर जो फील होता है वो होता है हमारा मरकरी फील होता है. ये जो सबसे आगे फील रिंग रहती है ये किसकी रहती है, मरकरी होता है. Then again this bulb contain mercury. Outside the bulb a small shiny thread of mercury can be seen. जो अभी हमने देखा था. If you do not the mercury thread, rotate the thermometer a bit till also a. If we'll also find a scale on the thermometer, the scale we use of the Celsius indicate by degree Celsius. Was wondered which the two scale shown in figure 4.2 we should read. पहली told in the India is the adopt Celsius scale and the read the scale. The another scale is the range of 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. Degree Fahrenheit is the
use of earlier, this time use of the Fahrenheit scale. The clinical temperature thermometer, it is degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from temperature from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. Reading a thermometer. How to read of thermometer? Let us learn how to learn a thermometer. First, note the temperature difference indicated between two bigger marks. Also note down the number of divisions between these marks. Suppose a bigger mark show 1 degree and there are 5 divisions between them. The small division is can by read 1 by 5 0.2 degree Celsius. Then again, wash the thermometer preferably with the antiseptic solution. हमें उसके बाद किससे थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करना चाहिए. Hold it the firmly and give firmly and get the few jets. The jets will bring the level of mercury down. Ensure the falls below 35 degree सेंटीग्रेड. जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को चेक करने के लिए पहले टेम्परेचर को माउथ के अंदर रखकर उसके बाद उसको थोड़ा शेक करते हैं. उसके बाद उसका टेम्परेचर को क्या करते हैं, नोट काउंट करते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. नाउ दैट द टेम्परेचर इज स्टडीड विद इट्स यूनिट. Let us try the Ashur. Pehli there is nothing wrong with her. Pehli measured her temperature. She got worried as it is not exactly 37. कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली नहीं है. ये वेरी करता है 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर. मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड्स की एक्टिविटी 4.3 के अंदर मेज़र करना है. एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के नेम एंड टेम्परेचर को मेज़र करना है. बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है एग्जैक्टली नहीं होता है, वेरी करता है 35, 36, 37, 40 अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. थोड़ा कुछ बढ़ता है, थोड़ा बहुत कम होता है, अप डाउन होता है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर ए human and large. The clinical design is measure to thermometer of human body only. The thermometer of human body normally does not go below 35 से डाउन नहीं होगा एंड 42 से अबाव नहीं होगा. ये एक रेंज, इस रेंज के ऊपर फिक्स होता है. ये एक जो दे रखा है ये हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसके बीच का होता है. डू नॉट क्लिनिकल टेम्परेचर मेजरिंग विद द टेम्परेचर एनी ऑब्जेक्ट दे द ह्यूमन बॉडी. जो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर जो यूज़ किया जाता है उस टेम्परेचर का हमें यूज़ नहीं करना है अदर वे के लिए. ओनली यूज़ करना है इसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए. लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है. हाउ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. दिस इज प्रपोज द अदर थर्मोमीटर. वन सच थर्मोमीटर इज नॉन एज लैबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो द थर्मोमीटर. ये इस तरीके का थर्मोमीटर्स होता है. इसका टेम्परेचर जो होता है उसका रेंज होता है, टेम्परेचर का रेंज होता है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक. डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज एट डिफरेंट पर्पज. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर प्रीवियस डे reported in weather report are measured by the thermometer called the maximum minimum thermometer. इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड है. देन अगेन यूज इन एक्टिविटी 4.5 मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ ए लैबोरेटरी थर्मोमीटर. वाटर का टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. थर्मोमीटर का यूज़ कैसे करते हैं? टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर एंड मग डिप द थर्मोमीटर ऑफ वाटर वेट टिल द मर्करी that become steady and not the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happened. Now do you notice as soon the
thermometer of the water. The level of mercury begins to fall. This means temperature must be read with the temperature in water. जब हम टेम्परेचर को चेक करेंगे तब टेम्परेचर को चेक करने के लिए इस तरीके से थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे. थर्मोमीटर के लेफ्ट या राइट में जो हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, सीधा उसको रखेंगे अंदर तक एंड उसके बाद नीचे भी उस मरकरी को टच नहीं होने देंगे. इस तरीके से हम थर्मोमीटर को क्या करेंगे, चेकआउट. थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर को क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे. देन अगेन देर इज़ द आजकल जो यूज़ किया जाता है जनरली क्लिनिकल, ये डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है. डिजिटल थर्मोमीटर, दिस इज लॉस्ट ऑफ कॉन्कर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर. मरकरी इज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. मरकरी हमारे पास कैसा होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है और वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स. देर दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी. उसके अंदर हम मरकरी का यूज़ नहीं करते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है देखते हैं. एक्टिविटी 4.6 के अंदर, टेक ए रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ द मेटल से द एल्यूमिनियम एंड रॉड, फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन ए रॉड. ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अलग अलग ये ब्रिक्स के अंदर इस तरीके से 2 ब्रिक्स के अंदर इसको एक रॉड को रख दिया एल्यूमिनियम या उसके अंदर जो डॉट ये दिख रहे हैं आपको, जनरली ये मोम या वैक्स के हमने डॉट्स लगा दिए. उसके बाद इनको क्या किया है, बर्न किया है. वॉट हैपन टू वैक्स पीसेज, डू दिस पीस बिंग टू फॉल, विच कौन सा पीस सबसे पहले नीचे गिरेगा, विच पीस फॉल्स टू फर्स्ट, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर टू एंड नियरेस्ट द फ्लेम ऑफ द अदर हैंड. वो जब हमने इसके ऊपर वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने के बाद वो सबसे ज़्यादा नीचे पहले नीचे गिरेगा जिसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास हीट ज़्यादा पास में होगी, उसके सराउंड के पास में होगी. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द कोलर एंड इज ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है, जब हॉटर एंड से फर्स्ट एंड हमारा हॉटर होगा, सेकेंड एंड जो कूलर एंड होगा, इन दोनों के बीच को एंड को क्या कहेंगे, हम कंडक्शन कहेंगे. In solid, generally the minutes touch the other hand. You observe the material which allow heat passes them easiest conduction of heat. For example, aluminium, iron, and copper. The material which do not pass through the easily and poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductor is known as insulator. Good conductor of heat, it is called conductor, and poor conductor of it is called insulators. In activity 4.7, heat water in a small pan on the beaker, collect some article in the steel spoon. अलग अलग आर्टिकल को हमने स्टील स्पून आर्टिकल कलेक्ट किया. कौन से आर्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये आपका होमवर्क है. टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क इन एक्टिविटी 4.8. इन राउंड बॉटम फ्लास्क या इन फ्लास्क के नॉन अवेलेबल इन बीकर कैन बी. यदि हमारे पास फ्लास्क नहीं है तो हम बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं. फिल इज इट 2/3 विथ वाटर, प्लेस इन द ट्राइपॉड ऑन ए अरेंजमेंट इन द प्लेस. द फ्लास्क इज द सच वे दैट इज कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट. उसके नीचे इस तरीके का ये डायग्राम है. ये डायग्राम के अंदर कन्वेक्शन ऑफ हीट ऑफ वाटर, ये हमने क्या लिया है, ट्राइपॉड स्टैंड है. ये ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ किया. ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ये जार रखा है, उसके ऊपर जो लिया है आरबी है राउंड बॉटम फ्लास्क, उसको फिल किया है वाटर से. उसके बाद उसको क्या किया, हमने हीट किया है. दिस वाटर आल्सो गेट हीट राइसेस and water from to side moves down. The process continuously till the wall water gets heated. जो वाटर हमारा ऊपर की ओर आएगा, वाटर हीट होता जाएगा, गर्म होता जाएगा. नीचे साइड का जो वॉल है वो वापस से अपर आएगा तो वो भी हीट होता जाएगा. ये प्रोसीजर जो कंटिन्यूसली चलता जाता है, ये प्रोसीजर होता है हमारे पास कन्विक्शन होता है. एक्टिविटी 4.9. Light a candle, keep one hand about the flame and the other hand the side of the flame. Do your hand feels equally hot? If not, hand feel hotter and why?
हमने दो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन ऑन एयर, एयर का कन्वेक्शन किधर होगा, ये दो हमने हैंड लिया है, एक हैंड ये इसका जस्ट इसके पास में और एक हैंड जस्ट इसके अपर है। यदि ये हैंड इसका फ्लेम के अपर है, ये वाला ज़्यादा हॉटर होगा एंड जो साइड वाला है वो थोड़ा कम हॉटर होगा। मतलब जो हमारा हीट का कन्विक्शन है, वो हीट का जो कन्विक्शन है ये अपर सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा, अपर पार्ट के ऊपर ज़्यादा होगा। Then again, the people living in the coastal areas experience the interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air in the sea rises in towards the land to take its place. The warm air from the land moves toward the sea, complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze, and the receive the cool sea breeze. The window of the house of coastal area in the bed of the face to sea. The water cools down slowly the land, so the cool air from the land moves toward the sea. It is called the land breeze. Two type के breeze होते हैं, sea breeze and land breeze. In डे टाइम के अंदर क्या होता है कि डे टाइम के अंदर ये राउंड होता है, डे टाइम के अंदर ये हॉट हो जाता है। ये जब सनलाइट आएगी तब ये हॉट हो जाएगा, और यही प्रोसीजर जब इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जब ये नाइट टाइम होगा तब नाइट के टाइम पर क्या हो जाएगा, जो कोल्ड प्लेस है वो हॉट हो जाएगा एंड हॉट प्लेस क्या हो जाएगा हमारे पास कोल्ड के अंदर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉम द सन इज हीट कम बाय द अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड इज़ नॉन एज रेडिएशन। ये प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशंस कहलाता है। काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयरिंग समर एंड विंटर, कौन किस किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं समर एंड विंटर के अंदर। डू यू नाउ इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन ए विंटर वी आर यूजली डार्क कलर्ड क्लॉथ। वाई इट इज सो, लेट अस फाइंड अस। टेक टू आइडेंटिकल टीन टैंक्स, पेंट द आउटर सरफेस वन ब्लैक एंड अदर वन वाइट। इस तरीके से हमारे पास ये कंटेनर दे रखे हैं। एक के अंदर हमने क्या किया है, ब्लैक कोटिंग कर दी है, सेकंड के अंदर क्या कर दिया हमने, वाइट कोटिंग कर दी है। इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा यदि हमने इस तरीके से इन दोनों के अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। जो ब्लैक वाला सब्सटेंसेस, ये ब्लैक वाला जो कंटेनर है ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा एंड वाइट वाला ही ये हीट को कम एब्जॉर्व करेगा। फील टू can use to activity 4.10 with the same amount of hot water and the same temperature, say at 60 degrees centigrade. Leave the can in the room in the shade, note the temperature of the water after 10-15 minutes. Thus the temperature of water in both the cans fall by the same amount. Do this activity suggest to you the reason why it is more comfortable wear white or light colored cloth in the summer and dark colored cloth in the winter. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कोटिंग जो है ये ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा सनलाइट को, एंड वाइट कोटिंग जो है हमारे पास ये कम एब्जॉर्व करेगा सनलाइट को। डार्क सरफेस एब्जॉर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ इन ए विंटर। लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट इन द फॉल्स ऑन देम, देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इन ए समर। तो लाइट हो गए, लाइट शेडेड जो होगा वो मोर कंफर्टेबल होगा समर टाइम पे, गर्मी के टाइम पर, और जो डार्क कलर होगा वो मोर कंफर्टेबल होगा हमारे लिए विंटर के टाइम पर। ओके, थैंक यू।